Hello friends, this is Soumya and let's start with July current affairs. We already did the February, March, April, May, June current affairs and now we'll start with the July current affairs. So the sequence will be same, right? First we'll do the general current affair, the general affairs, then international affairs, then we'll reach on to the environment, economy and so on. So first we'll start with general affairs. Now in the journal current affairs, the very first topic is the new parliament building that is formed, right? नई parliament building अभी recently बनी है, right? and ये सबसे पहले तो कौन से प्रोजेक्ट के अंदर बनाई गई है, तो ये है आपका सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, राइट? वेरी फेमस. ओके, किसने कंस्ट्रक्ट करी है? सो इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय टाटा, Tata Project Limited, right? Okay. And under which ministry this project was piloted? Ministry of Housing and Urban Affairs. And this is inaugurated by the PM of country, Mr. Narendra Modi. And when he inaugurated? On the birth anniversary of V.D. Savarkar. Right? Now general features about the building. The very first is the triangular shape. So this building is triangular shaped, first. Second, the legislative chambers, they are based on the Indian national bird, that is peacock. And Rajya Sabha is based on the national flower, that is lotus. Overall, the hall depicts like a pendulum, right, which demonstrates the rotation of the earth. Now certain other features if we'll see is the new building also is Divyang friendly. Divyang friendly is people who are handicapped, right? So certain services and certain infrastructure facilities also provided to them. Overall it is a green building, right? Keeping in mind about sustainable development, it is being built. Now certain other feature, this building also replete the national emblem, and that is Lion Capital Ashok. Now there is also a golden scepter, and that golden scepter is Sengol, and it was given to Jawaharlal Nehru on the eve of independence, which symbolizes transfer of power, right? Overall this Sengol, this scepter is 5 feet long stick, right? Overall it is made up of gold. On the top there is a Nandi statue, and this represents the symbol of Nyaya.
Now this Sengol actually belongs to Chola dynasty. Right? And Adhiram, the Sengol, become the sacred symbol by the transfer of the power. Now the next topic is with respect to the World Press Freedom Index. World Press Freedom Index 2023, and this index is actually by the Reporters Without Border. Right? So it is released by the Reporters Without Border. What is the India rank? India is 161 rank. So World Press Freedom Index, it is released by Reporter Without Freedom, and in this the India rank is 161. Right? Okay. So further we will see. And the next we will see the Government of NCT of Delhi Amendment Ordinance. So Government of NCT, Delhi Amendment Ordinance. Right? 2023. Now this ordinance, so the President of India actually exercised the legislative power, and he exercised legislative power under Article 123 of the Indian Constitution, right? And under Article 123 he promulgate this ordinance, right? अब पूरा एक बार आर्टिकल 123 समझेंगे क्या होता है. तो आर्टिकल 123 is the power of the president power to promulgate the ordinance. Right? So article 123 is, if at any time except when both the houses of the parliament are in session, parliament is satisfied or the president is satisfied to take the necessary action in order to enact the promulgate. तो आर्टिकल 123 सिंपल लैंग्वेज में ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है, राइट? ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है, और ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट कभी भी इशू कर सकता है जब उसको लगे कि अब ऑर्डिनेंस इशू करना चाहिए, देयर हैज़ बीन एन इमीडिएट सिचुएशन और देयर हैज़ बीन सर्टेन सर्कमस्टांसेस जहाँ पे अब ऑर्डिनेंस को इशू करना चाहिए, इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस. ठीक है? और ऑर्डिनेंस जो भी इशू करेगा प्रेसिडेंट, फिर बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से वो पास होना चाहिए विद इन द 6 वीक्स. मैक्सिमम टाइम क्या होता है? 6 वीक्स, 6 मंथ 6 वीक्स, राइट? चलिए अभी के लिए इतना समझना ज़रूरी था, वो समझ लिया. बाकी फर्दर डिटेल पॉलिटी की सीरीज़ में कवर अप हो जाएगी. राइट? नाउ दिस आर्टिकल 239AA 239AA, ये आर्टिकल क्या कहता है आपका? दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली. दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर है ओवरऑल टू मेक द लॉ, राइट? सो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर है ओवरऑल लॉ बनाने के लिए विद रिस्पेक्ट टू 3, दैट इज पुलिस,
public order and land. So पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड. सो इन तीन के रिस्पेक्ट में दिल्ली की गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगी. मतलब इन तीन के रिस्पेक्ट में सेंटर लॉ बनाएगी, एक्सेप्ट फॉर दैट दिल्ली की गवर्नमेंट लॉ बनाएगी. राइट. समझ में आया ये तीन का मतलब क्या है? कि जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है आपकी, दिल्ली सरकार जो है आपकी, वो पूरा ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स सब दिल्ली सरकार के अंडर में है, एक्सेप्ट ये तीन चीज़ें. दिल्ली की पुलिस सेंटर के हाथों में है, पब्लिक ऑर्डर सेंटर और लैंड सेंटर. राइट. एक्सेप्ट ये तीन, बाकी सारा दिल्ली गवर्नमेंट हैंडल करती है. ये तीन चीज़ें सेंटर हैंडल करती है. राइट. अब ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल. ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल आपका कहाँ पे सेलिब्रेट हुआ है रिसेंटली? केरला में. 2023 में ये केरला में सेलिब्रेट हुआ है. इसकी थीम क्या है? ओवरऑल हमें जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ केयर इन आयुर्वेदा वो हमें टैकल करने हैं. सो इमर्जिंग चैलेंजेस को टैकल करना है with respect to healthcare in Ayurveda. Right. Now मेरी लाइफ ऐप. मेरी लाइफ ऐप ये क्या है? मेरी लाइफ ऐप ये बेसिकली यूथ को हम प्रमोट करते हैं, कैटलाइज करते हैं, प्रमोट करते हैं कि प्रॉपर तरीके से आप एक्शन लीजिए टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज. राइट. सो ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जहाँ पे यूथ को प्रमोट करते हैं हम पॉजिटिव एक्शन लेने के लिए टुवर्ड्स द क्लाइमेट चेंज. तो 5 जून आपको पता है ये क्या है? आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है आपका. राइट. 2023 में ये बनाया जाता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में ये पूरा प्रोजेक्ट आपका आता है. ठीक है. नेक्स्ट चीज लेट्स सी 75-25 इनिशिएटिव. ये क्या है? 75-25 इनिशिएटिव ये क्या है आपका? ये ओवरऑल आपका हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आता है, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है. राइट. यहाँ पे सबसे पहला चीज़ हम हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ को टैकल करने का वेज देखते हैं. एंड वी हैव टू टैकल दीज टू बाय 2025. राइट. यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को भी हम टैकल करते हैं. देन सशक्त पोर्टल, ये प्राइमरी मेडिकल हेल्थ केयर से रिलेटेड है. राइट. Okay, now we'll see the next one. Now the next is उड़ान. उड़ान प्रीवियस वीडियो में भी हमने पढ़ा था. राइट. मई जून करंट अफेयर्स में उड़ान इस उड़े देश का हर नागरिक. ये एक एयर कनेक्टिविटी ओवरऑल स्कीम है आपकी. रिमोट एरियाज़ में आपको कनेक्ट करेगी ये.
राइट किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आती है। 2023 में ये डेवलप हुई है स्कीम ओवरऑल। राइट दैट्स इट। नाउ इंडिया का फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, और ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे बनाया गया है? असम में बनाया गया है। इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में बनाया गया है। राइट किस मिनिस्ट्री के अंदर बनाया गया है ये? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग। राइट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर, इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर ये आपका चंडीगढ़ में है। राइट 2023 में ये बनाया गया है आपका। Now let us see India longest sea bridge, Mumbai Trans Harbour Link. So इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज मुंबई हार्बर लिंक, ये 2023 में है, बनाया गया है ये। राइट ओवरऑल एक लॉन्ग ब्रिज बनाया गया है जो कनेक्ट करेगा सेवरी मुंबई आइलैंड से और नहावा नवी मुंबई आइलैंड्स। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है बेसिकली। राइट नाउ केरला, केरला इंडिया की फर्स्ट ई गवर्नेंस स्टेट है। राइट सो इंडिया फर्स्ट फुली ई गवर्नेंस स्टेट है, सक्सेसफुली डिजिटाइज्ड, एक्सटेंसिव गवर्नमेंट सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। नाउ नेक्स्ट प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम 2.0 ये 2023 में सबसे पहले तो लॉन्च करी गई थी। राइट 2.0 1.0 लॉन्च कब करी गई थी? 2.0 तो 2023 में लॉन्च करी गई थी और 1.0 लॉन्च करी थी 2021 में। राइट ओवरऑल ये जो स्कीम है आपकी, ये देखते हैं किससे लिंक करती है और ये स्कीम ओवरऑल है क्या। सो ये ओवरऑल फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड करती है और किस चीज़ में? बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग। कौन सी मैन्युफैक्चरिंग? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। राइट और लार्ज इन्वेस्टमेंट्स भी अट्रैक्ट करती है। अब रेल विकास निगम लिमिटेड देखते हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड, ये इसको नवरत्न स्टेटस अवार्ड किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर में।
राइट। चलिए नेक्स्ट चीज़ आते हैं, ऑपरेशन करुणा। ऑपरेशन करुणा ये म्यांमार को असिस्ट करने के लिए है, जो रिसेंटली अभी वहाँ पे साइक्लोन आया था मोचा, तो इस साइक्लोन की वजह से काफ़ी डिवास्टेशंस हुई थी आपकी, काफ़ी तबाही मची थी आपकी, या कहो डिस्ट्रक्शंस हुई थी, या डिसमैनेजमेंट हुआ था म्यांमार में, तो उसको सही करने के लिए आपका ऑपरेशन करुणा, राइट। नाउ सचार साथी पोर्टल, सचार साथी पोर्टल ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस लेके आया है, संचार साथी पोर्टल, राइट। सो ये कौन सी मिनिस्ट्री लेके आई है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी। और ये किस चीज़ के रिस्पेक्ट में है, ओवरऑल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मोबाइल यूज़र्स को हम प्रोवाइड करेंगे, राइट। इंडिया ओवरऑल सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम इकोसिस्टम बनाया गया है आपका। अब आता है ऑपरेशन ध्वस्त। ऑपरेशन ध्वस्त क्या है, ये ऑपरेशन ध्वस्त है आपका, यहाँ पे क्रैकडाउन, मतलब रिड्यूस करेंगे क्या चीज़ हम, ये जो टेररिस्ट, गैंगस्टर और ड्रग नेक्सस के बीच में कनेक्शन है, टेररिस्ट, गैंगस्टर एंड ड्रग नेक्सस, राइट। अब देखते हैं इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट। ये इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट क्या है, इसको देखते हैं। इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022, ये सबसे पहले तो किसने पब्लिश करी है, तो ये पब्लिश करी है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, राइट। और इसमें ओवरऑल आपके जो इंटरनेट यूज़र्स को हम ओवरऑल इंक्रीज़ करेंगे, राइट। और इसी के अंदर क्या है आपका, ये भी बताया गया है कि कितने परसेंट यूज़र्स जो है आपके, ये ओवरऑल करेंटली इंटरनेट, एक्टिव इंटरनेट यूज़र्स जो हैं ये आपके 52% इंटरनेट यूज़र्स हैं आपके, राइट। सो एक मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन आप कह सकते हो एक्टिव इंटरनेट यूज़र्स हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि 56% जो आपके न्यू इंटरनेट यूज़र्स हैं, बहुत ही एक्सटॉनिशिंग फैक्ट है, बट 56% जो आपके इंटरनेट यूज़र्स हैं वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, राइट, रूरल इंडिया। देन अहमदनगर, ऐसा बोल रहे हैं कि अहमदनगर को हम रीनेम करके हम क्या लिखेंगे, अहिल्याबाई होलकर के नाम पे हम इसको रखेंगे, राइट। चलिए, नाउ ये थे सारे आपके जनरल करंट अफेयर्स। नाउ विल कम ऑन टू द इंटरनेशनल अफेयर्स। अब इंटरनेशनल अफेयर्स में सबसे पहले एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2023, राइट। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, यहाँ पे एडॉप्शन हुआ है, यहाँ पे अडॉप्ट हुआ है इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट का, वो है आपके डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। सो इंटरनेशनल अफेयर्स में सबसे पहले हम एससीओ के बारे में पढ़ेंगे,
जहाँ पे आपका जो रिसेंटली SCO के अंदर अडॉप्शन हुआ है आपका इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट का, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो वेरियस प्लेटफॉर्म जैसे आधार, UPI, डिजी लॉकर, तो इन सभी को इनेबल किया गया है थ्रू डिजिटल इंक्लूजन, इनोवेशन एंड सोशल एम्पावरमेंट, राइट। ओवरऑल 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रमोट करने के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को। हालांकि ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये चीज़ पता होनी, ध्यान रखना है आपको कि रिसेंटली SCO में अभी इस तरीके से कुछ एग्रीमेंट जो कि आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, तो इस तरीके से जो है आपका एक एग्रीमेंट को अडॉप्ट किया गया है। तो ये आपको जनरल इन्फो पता होना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6th इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस देखते हैं। सिक्स्थ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो ये जो आपकी इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है ये 2023 में ऑर्गेनाइज करी गई है, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर ये आती है आपकी। इसकी जनरल थीम क्या है आपकी? पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर को ये लिंक करेंगे। पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर द फ्यूचर को लिंक करेंगे, राइट। यहाँ पे ओवरऑल आपका इंडियन ओशियन को इम्पोर्टेंस देने की बात करी गई है एंड ओवरऑल प्रमोशन की बात करी गई है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं आपके ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनेट डिस्प्लेसमेंट। सो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनेट डिस्प्लेसमेंट, ये रिपोर्ट जो है आपकी ये क्या मार्क करती है आपकी कि जो नंबर ऑफ पीपल डिस्प्लेस हुए हैं आपके डिज़ास्टर की वजह से, वो इंक्रीमेंट हो गया है 40% बाय 2022, राइट। राइट, सो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनेट डिस्प्लेसमेंट कि इंटरनेट डिस्प्लेसमेंट की वजह से एंड अदर डिज़ास्टर की वजह से 40% लोग हैज़ बीन डिस्प्लेड एंड दे हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड, राइट, बाय 2022। तो ये है आपकी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इंटरनेट डिस्प्लेसमेंट। और एक एस्टॉनिशिंग फैक्ट इसमें बताया गया है कि इंडिया जो है आपकी वो 4th लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ डिज़ास्टर डिस्प्लेसमेंट। इंडिया 4th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। चलिए फर्दर आगे मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रश्त अस्तारा रेलवे। रश्त अस्तारा रेलवे, right, and INSTC, that is इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये एक बहुत ही क्रूशल कनेक्टिविटी कॉरिडोर है। किस किस को लिंक करता है? इंडिया, ईरान, अज़रबैजान एंड रशिया, राइट। सो ये रश्त अस्तारा रेलवे लिंक, ये 162 किलोमीटर का रेलवे लिंक है ये, और ये ईरान एंड अज़रबैजान को लिंक करता है, राइट। 7200 किलोमीटर्स लॉन्ग ये रेलवे लाइन है आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप। तो नेक्स्ट में आप देखेंगे ये बताया गया है यहाँ पे इंडियन आर्मी रिसेंटली सेलिब्रेटेड दी इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स। तो ये आपकी नेक्स्ट
है कि इंडियन आर्मी ने 75th इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स सेलिब्रेट किया है। इसकी थीम अगर पूछी जाए तो क्या है? पीस बिगिंस विद मी। देखिए ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्रिस्प इंफॉर्मेशन और करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, राइट। ईच एंड एवरी वर्ड विच आई एम सेइंग एंड विच आई एम राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। तो अपनी तरफ से कुछ काटा चाटी मत करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही क्रिस्प और सेवरल रिविजन्स के बाद हमारी टीम ने ये प्रिपेयर किया है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, राइट। ओके, सो इंडियन आर्मी, मैंने आपको बताया 75th इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स सेलिब्रेट किया गया है, और यहाँ पे थीम क्या है इसकी? दैट पीस बिगिंस विद मी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट चाइना सेंट्रल एशिया समिट। फर्स्ट चाइना सेंट्रल एशिया समिट। तो ये जो चाइना सेंट्रल एशिया समिट है आपका, राइट, ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ओवरऑल आपकी इन्वॉल्व होती हैं। कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, राइट। तो इसमें ये 5 कंट्री सेंट्रल एशिया की ओवरऑल टुक पार्ट एंड दिस समिट एक्चुअली टुक प्लेस। तो चाइना एंड अदर 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, दे पार्टिसिपेटेड, राइट। डिटेल में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडिया का इन्वॉल्वमेंट इसमें है नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे एससीओ। एससीओ क्या है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एससीओ। अब सबसे पहला क्वेश्चन, ये कब फॉर्म हुआ था? तो ये फॉर्म हुआ था आपका 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने मेंबर्स हैं इसके अंदर? तो इसके अंदर कितने मेंबर्स हैं आपके? 8 मेंबर्स हैं ओवरऑल, ठीक है। तो कौन कौन से मेंबर्स हैं? 8। तो चाइना है, कज़ाकिस्तान है, देन किर्गिस्तान है, रशिया है, इंडिया है, पाकिस्तान है, राइट, तजिकिस्तान है और उज़्बेकिस्तान है, ऑलराइट। अच्छा, 2 परमानेंट बॉडीज़ भी हैं एससीओ की। तो ये कौन सी बॉडीज़ हैं आपकी 2 परमानेंट बॉडी? तो एक है आपकी रैट्स, रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर इन ताशकंद, और दूसरी है आपकी एससीओ सेक्रेटेरिएट। एससीओ के अंदर जो काउंसिल ऑफ हेड्स हैं, ये ओवरऑल डिसीजन मेकिंग बॉडी है विद रिस्पेक्ट टू एससीओ, राइट। और इंडिया को किसका स्टेटस मिला हुआ है अभी? पहले मिला हुआ था ऑब्जर्वर स्टेटस, बट अभी इंडिया एक परमानेंट मेंबर है एससीओ का। और इंडिया और पाकिस्तान कब बने थे परमानेंट मेंबर्स? 2017 में बने थे। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। एक्चुअली तो 2015 में बने थे, और जिस समिट के अंदर बने थे वो ऊफा समिट था, बट फाइनली फिर ये एक्सेप्ट हुआ था 2017 में, राइट। तो ये इसका बैकग्राउंड था। अब इसकी थीम क्या थी 2022 एससीओ समिट की? तो थीम जो थी वो थी आपकी टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ, राइट, टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ। रिसेंटली अभी ऑब्जर्वर स्टेटस 3 कंट्रीज़ को मिला है। ईरान को मिला है, बेलारूस को मिला है और मंगोलिया को मिला है। ये भी आप जनरल इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। नाउ इसके बाद हम देखेंगे कंबाइंड
मेरीन टाइम फोर्स, राइट। अब कंबाइंड मेरीन टाइम फोर्स 2001 में ये स्टेब्लिश हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? बहरीन में है, राइट। ओवरऑल नेवल पार्टनरशिप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है और 38 मेंबर्स ओवरऑल इसमें लिंक करते हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, राइट। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन। नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं, ग्लोबल अलायंस, राइट, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन। तो ये जो ग्लोबल अलायंस है नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन की, इसको फॉर्मली हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी। तो ये नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन की ओवरऑल क्या चीज़ है यहाँ पे? ओवरऑल एक्सचेंजिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड ओवरऑल इंटरैक्शन प्लेटफॉर्म एक प्रोवाइड करता है आपका, राइट। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं अब यहाँ पे। बस एक बार मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, हालांकि ये पॉलिटी में डिस्कस्ड है ऑलरेडी, बट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपका ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है पहली चीज़। और ये किस एक्ट के अंदर बनी है? तो ये बनी है आपकी नेशनल ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, राइट। ये चीज़ ओवरऑल ये ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसके अंदर यही चीज़ मेंशन्ड है, ऑल राइट। द चेयरमैन कौन है आपका NHRC ऑफ इंडिया का? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब हम यहाँ पे इकोनॉमिक अफेयर्स को कवर करेंगे। इकोनॉमिक अफेयर्स में सबसे पहली चीज़ हम कवर करेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में सबसे पहले चीज़ हम देखेंगे कि किस तरीके से जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, तो वो सबसे पहले चीज़ तो फूड और न्यूट्रिशनल स्टेटस को कवर अप करता है सारा, राइट। तो फूड एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस को कवर करता है, जहाँ पे 75% रूरल पॉपुलेशन है और जो 50% है आपकी, वो आपकी अर्बन पॉपुलेशन है, ऑल राइट। तो 50% आपकी अर्बन पॉपुलेशन है। और ओवरऑल क्या है आपका? TPDS, टारगेटेड PDS को ये ओवरऑल आपके अंडर में आता है, जहाँ पे 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन आपका डिपिक्ट होता है। तो आपका 5 kg ऑफ राइस, जो कि अब ये जो क्वांटिटी है वो अनलिमिटेड कर दी है, 321 के प्राइस पे आपको मिलेगी। और ये प्राइस भी अब एक्चुअली में ये है नहीं, ये चेंज हो गया है यहाँ पे, राइट। ये कोविड के टाइम पे ये फ्री दी जाती थी और ये 5 kg को बढ़ा के 10 kg कर दिया था, अब वापस से 5 kg ही है ये, राइट। ओके, इसी के अंदर आता है आपका अंत्योदया अन्न योजना। और अंत्योदया अन्न योजना जो है आपका, ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को प्रोवाइड किया जाता है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर को। एंड 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ इनको मिलता है, आपका फ्री अमाउंट में इनको मिलता है, राइट, नो चार्ज। ओके, फर्दर नेक्स्ट एक और पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि स्पेशल केयर एंड स्पेशल फोकस वुमेन को दी जाती है, आपकी चिल्ड्रन को दी जाती है, आपकी जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनको दी जाती है आपकी, राइट। एंड चाइल्ड में 6 months आफ्टर द चाइल्ड को भी प्रोटेक्शन दी जाती है आपकी। एंड जब तक चाइल्ड 14 ईयर्स तक टर्न नहीं हो जाता, जब तक आपको प्रोटेक्शन दी जाती है। ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी इसके अंदर फॉर्म है। इन केस ऑफ एनी कंप्लेंट्स यू कैन फाइल द कंप्लेंट ओवर देयर, राइट। नाउ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013।
अब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 क्या होता है? सबसे पहला चीज़ यहाँ पे आपका न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड्स को ओवरऑल इम्प्रूव करना है, सबसे पहले चीज़, राइट. सो चिल्ड्रंस फ्रॉम द 6 months ऑफ एज टू द 6 years ऑफ एज ओवरऑल यहाँ पे कवर अप किए जाते हैं, राइट. देन इसके बाद किस चीज़ को लेके बात होती है? आपकी यूनिसेफ, WHO एंड वर्ल्ड बैंक. सो यूनिसेफ, WHO, वर्ल्ड बैंक. अब इसमें ये बताया गया है कि 45 मिलियन चिल्ड्रन अंडर द 5 एज, राइट, 45 मिलियन चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years they has been suffering from wasting. चाइल्ड माल न्यूट्रिशन डाटा भी बताया गया है इसमें, ठीक है. डिफरेंट चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी गई हैं कि स्टंटिंग क्या होती है, वेस्टिंग क्या होती है एंड ओवरवेट क्या होता है. तो स्टंटिंग का मतलब क्या होता है आपका? हाइट शॉर्ट एज कंपेयर टू द एज, है ना. देन वेस्टिंग क्या होता है आपका? टू थिन अकॉर्डिंग टू द हाइट. एंड ओवरवेट क्या होता है आपका? टू हैवी फॉर द वेट. राइट. चलिए नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं, पोषण अभियान क्या होता है. देखिए पोषण अभियान सबसे पहला होता है आपका प्रधानमंत्री मट्टू वंदना योजना, ठीक है. तो पोषण अभियान, प्रधानमंत्री मट्टू वंदना योजना और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये सभी स्कीम्स जो हैं ये माल न्यूट्रिशन को टैकल करती हैं बेसिकली, सबसे पहले चीज़, राइट. ये ओवरऑल अवेयरनेस क्रिएट करती हैं. किस पे अवेयरनेस क्रिएट करती हैं? न्यूट्रिशन पे. अब आपके माइंड में आएगा क्या ये सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंटर सेक्टर स्कीम है? तो ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है आपकी. सेंटर स्पॉन्सर क्या होती है? जिसकी फंडिंग स्टेट भी करती है और साथ में सेंटर भी करती है. लेट्स से स्टेट आपकी 40% देगी, सेंटर आपकी 60% ऑफ द अमाउंट देगी, राइट. तो ये पोषण अभियान. नाउ नेक्स्ट इज बी रेडी प्रोजेक्ट. ये बी रेडी प्रोजेक्ट क्या है आपका? वर्ल्ड बैंक इसको इशू करता है आपका, राइट. ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस क्लाइमेट के रिस्पेक्ट में ये आपका डील करता है. देन कमिंग टू कदम्बश्री. ये आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट एसएचजी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, राइट. कदमश्री ओवरऑल पॉवर्टी इरेडिकेशन से डील करता है आपका, वुमेन एम्पावरमेंट से डील करता है, राइट. और 1997 में ये आपका बना था.
नेक्स्ट देखते हैं इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। अब ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, सबसे पहले इनको देख लेते हैं, ये कौन कौन सी इसमें कॉन्स्टिट्यूट होती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी, क्रूड ऑयल, राइट, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स, तो ये 8 इंडस्ट्रीज़ आपकी कॉन्स्टिट्यूट होती हैं, राइट। 2023 में ये आपका ओवरऑल डाटा आया था कि ओवरऑल इंक्रीज़ इन द प्रोडक्शन प्रिडिक्ट की जा रही है। और किस मिनिस्ट्री के अंदर ये पूरा सिस्टम आता है आपका कोर इंडस्ट्रीज़ वगैरह का? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में आता है आपका, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और ये डाटा एवरी मंथ प्रिपेयर किया जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लॉन्च करी है विवाद से विश्वास, रिलीफ टू एमएसएमई, राइट। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिलीज़ करी है विवाद से विश्वास, मिनिस्ट्री टू और रिलीफ टू एमएसएमई। तो यहाँ पे एमएसएमई कंट्रीज़ को रिलीफ दिया जाता है, कोविड-19 पीरियड के दौरान इन्हें दिया गया था रिलीफ, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ओवरऑल हमें अपनी लिमिट्स को एक्सटेंड करना है रीफंडिंग पर्पस से, ताकि हम एमएसएमई कंट्रीज़ को और ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के साथ प्रोवाइड कर पाएँ, उन्हें बेटर बेनिफिट प्रोग्राम्स को प्रोवाइड कर पाएँ, राइट। ओके, देन नेशनल अकाउंट हेल्थ अकाउंट स्टेटस, ये पिछले मई जून के करंट अफेयर्स में भी कवर किया था। ये नेशनल हेल्थ अकाउंट स्टेटस, ये डॉक्यूमेंट नीति आयोग का डॉक्यूमेंट है, राइट। चलिए इसमें हमें डिफरेंट डाटा के बारे में बताया गया है कि आपके किस तरीके से जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैं हेल्थ केयर के इंक्रीज़ हो रहे हैं, प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ हो रहे हैं, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर डिक्लाइन हो रहा है, बाकी सब इंक्रीमेंट हो रहा है, राइट। अब इसी के अंदर बताया गया है कि ओवरऑल जो आपका हेल्थ का जीडीपी है वो आपका रेज़ हो रहा है, और जो हेल्थ का जीडीपी है वो रेज़ कितना हो रहा है आपका 1.13% से लेके 1.35% तक, राइट। टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर आपका ओवरऑल डिक्लाइन हो रहा है, तो कितना 62% से 47% डिक्लाइन हो रहा है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है, राइट। देन विल सी आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये 2018 का इनिशिएटिव है, 2018 में लॉन्च हुआ था। ओवरऑल यहाँ पे हेल्थ सेक्टर को प्रमोट करने की बात करी गई है, हेल्थ सेक्टर को प्रमोट करने की बात करी गई है। ये एक सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, राइट। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, डी डॉलराइजेशन का कंसेप्ट है ये। डी डॉलराइजेशन क्या होता है? डी डॉलराइजेशन होता है आपका रिप्लेसमेंट ऑफ यूएस डॉलर, राइट। तो यूएस डॉलर्स जो हैं आपके वो आपका रिप्लेस किया जा रहा है
विद द कंट्री ओन करेंसी। जैसे रिसेंटली अभी जब हमने इंडिया और रशिया के साथ डील किया था, तो हमने किस में डील किया था? इंडियन रुपीज़ में डील किया था, है ना, रूबल में डील किया था। तो इस तरीके से जो डी डॉलराइजेशन है, मतलब डॉलर का जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो रहा है, डॉलर का सिग्निफिकेंस जो है वो कम हो रहा है, राइट। चलिए फर्दर आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्स पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट। ये पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट क्या है? जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर लॉन्च करी गई है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे किस तरीके से मिनिमाइज करना है हमें इंपोर्ट विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस, राइट। इंपोर्ट को आपको कम करना है विद रिस्पेक्ट टू डिफेंस। देन फर्दर डिफेंस सेक्टर में प्रमोट करने के लिए सिप्री रिपोर्ट क्या कहती है आपकी? किस तरीके से जो आर्म्स इंपोर्ट है वो इंक्रीमेंट हो रहा है आपका। इंडिया लार्जेस्ट आपका आर्म्स इंपोर्टर है, और किससे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करती है? रशिया से। रशिया के बाद किससे करती है? यूएसए से करती है, ठीक है। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट बनाई गई है। तो ये पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट क्या है आपकी? ये भी आपकी इंपोर्ट ऑफ डिफेंस से डील करती है आपकी लिस्ट, राइट। इसके बाद आपका आता है एफडीआई। तो एफडीआई कितना दिया गया है इसमें? 74% दिया गया है। देन मिशन स्पेस एक्स आता है आपका, राइट। डेफ स्पेस। श्रीजन पोर्टल आपका डिफेंस को प्रमोट करने के लिए है आपका। डिफेंस कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि नेशनल इनकम स्टेटस डाटा। देखिए नेशनल इनकम स्टेटस डाटा अगर मैं आपको बताती हूँ तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका जीडीपी है वो आपका ग्रो कर रहा है, और ये आपका 6.1% से ग्रोथ हो रहा है आपका जीडीपी का, राइट। अब ये जो इनकम स्टैटिस्टिक्स हैं आपकी, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है आपकी? ये आपकी मॉस्पी के अंदर है। ये मॉस्पी क्या है आपकी? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, राइट। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इंडेक्स। यहाँ पे प्राइस ऑफ गुड्स डिपिक्ट करा गया है होलसेल गुड्स का, राइट। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये मेंशन है। एंड बेस ईयर क्या है इसमें? 2011, मतलब 2011 से 2012, राइट। और किसने रिलीज़ करा है ये? ऑफिस ऑफ इकोनॉमी एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। WPI के अंदर एक ख़ास बात है कि यहाँ पे सर्विसेज काउंट नहीं होती हैं, ओनली गुड्स काउंट होते हैं, वो भी होलसेल गुड्स काउंट होते हैं। WPI के अंदर एक ख़ास बात है, पहली सर्विसेज काउंट यहाँ पे नहीं होती हैं, ओनली गुड्स काउंट होते हैं आपके, वो भी होलसेल गुड्स काउंट होते हैं।
ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जो डाटा है वो मंथली बेसिस पे आपका अवेलेबल होता है, राइट। ये किसने रिलीज़ करा? ये रिलीज़ करा आपका ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर है ये, राइट। बेस ईयर क्या है यहाँ पे? 2011-2012 ये बेस ईयर है। राइट। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, आरबीआई हैज़ अप्रूव्ड ट्रांसफ़र ऑफ सरप्लस टू द गवर्नमेंट। सरप्लस फंड्स आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है कि सरप्लस फंड्स जो हैं वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, राइट। कितने सरप्लस फंड्स थे? 87,406 करोड़। हालांकि ये नंबर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने जनरली आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया है, राइट। ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट को भी कम करेंगे 5.9%, तो ओवरऑल आपका फंडिंग ट्रांसफ़र के रिस्पेक्ट में परमिशन दे दी गई है। ऑलराइट, तो अब इसके बाद हम देखेंगे आपके कुछ साइंस के करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स। अभी तक हम क्या देख चुके हैं? जनरल करंट अफेयर्स देख चुके हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स देख चुके हैं और इकोनॉमिक अफेयर्स देख चुके हैं। तो अब देख रहे हैं किस तरीके से हम सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जा रहे हैं, राइट। चलिए, अब आप बोलेंगे तो साइंस के हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, राइट। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड डू कीप रिवाइज ऑल द वीडियोज़, राइट। मिस मत करिएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही क्रिस्प और हाईली एक्यूरेट वर्जन आपको प्रेजेंट किया जा रहा है, एंड एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट विच आई एम writing and which I am speaking. Okay, चलिए, thank you.